Hello students, how are all my dear and loving students? Pray to God for your good health. Stay at home and stay safe. We have completed 19 chapters till now, and I am sure that all my smart and hardworking students have seen all the recorded videos of grammar and understood them in detail. Grammar is the thing of continuous practice and use them in your conversation. So please try to do the same. Now let's begin our session. Today I Shama Khan is going to take your grammar lecture from your Ace Grammar book of standard 4th. The chapter which we are going to do is chapter number 20, that is conjunctions. Chapter number 20, conjunctions. Now, before we start this lesson, let's take a quick look of the last chapter which we did. Students, tell me which was the last chapter we have done? Excellent students. It was chapter number 19, prepositions. So, what are prepositions, students? A preposition is a word that is used to show the relationship between two things in a sentence. सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाता है, उसे कहा जाता है preposition. तो how many types we studied? Yes, we studied 3 types of preposition. Preposition of time, which tells about when the action took place, कि एक्शन कब हुआ था उसके बारे में बताता है. Second, preposition of place, means it tells us where the things are. And third one we studied, that was preposition of direction, means it tells us the direction in which an object is moving. कौन से डायरेक्शन में चीज़ मूव कर रही है, it is shown by preposition of direction. So this was studied. We have studied in chapter number 19, preposition. Now today we are going to study chapter number 20, that is conjunction. Now have you heard this word conjunction anytime? Surely yes. You have heard these words at the रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन ने आपने मुसाफरी की होगी. यू माइट हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन सिटी टू अनदर. वहाँ पे आपने ये नाम सुना होगा जंक्शन. कैसे? वेयर मेट्रो सिटीज़ आर, वहाँ पे जहाँ पे मेनली मेट्रो सिटीज़ होती है वहाँ पे होता है. देयर द नेम ऑफ रेलवे स्टेशन इज़ लाइक अहमदाबाद जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाई लाइक दिस. सोचिए ज़रा. नो आइडिया? ओके. बिकॉज द ट्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम एंड मीट देयर. बहुत सारे सिटीज़ से ट्रेन आके वहाँ पे मीट करती है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जंक्शन. So here also same way, in this lesson the name of our lesson is conjunction. That's why it is a junction. Means what? In the same way like junction, here the words or group of words in the sentence are joined. रेलवे स्टेशन में क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन्स आके वहाँ पे मिलती है और यहाँ पे हमारे सेंटेंस के अंदर अलग अलग वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं. सो द नेम ऑफ द लेसन इज कंजंक्शन, मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन with reading of the sentences. Now here it is there.
read these sentences. The first sentence is the hen and chick are in the farm. So here two things are there. One hen, another is chick. It is joined by and conjunction word. He ran fast but missed the bus. So please pay attention here. The words which are in red color, but. Do you like books or magazines? Here choice is there. आपको क्या पसंद है, books or magazines? I will be late because I have an extra class. So here reason is given कि he will be late because he has an extra class. So let's try to understand in detail. Now here the first sentence was, what was that? He ran fast but missed the bus. वो फास्ट दौड़ा मगर उसकी बस छूट गई. So the bus he has missed. Now here two options are given. Books. So do you like the books or the magazine? आपको दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? Either the books or the magazines. Okay students. And the next sentence was I will be late because I have an extra class. तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं. The words in bold are conjunctions. मैंने आपको पहले ही बताया, means joining. Conjunction means जहाँ दो चीज़ें हम join करते हैं. Conjunction are words that join words. किसे join करते हैं? Words. They join group of words or sentence. Again, conjunction क्या होता है? Conjunction are words that join words. बहुत सारे words को join करता है. Group of words, बहुत सारे group of words होते हैं, उसको भी join करता है. और sentence. So, conjunction are the words that join words, group of words or sentence. How it is joining? Let's see. And. And is used to join two words or sentence. And का use दो word या दो sentence को join करने के लिए होता है. That are similar or are related in meaning. या तो वो चीज़ एक जैसी होनी चाहिए या उनका मीनिंग सेम होना चाहिए. By that and word we can join the two words or two sentence. Let's read the example. Mukul and Rakesh are going to school. Both of them are going to school. So both are friends. They are going to school. We need to buy fruits and vegetable from the market. तो यहाँ पे fruits and vegetables two things are there. We were waiting for the bus and it began to rain. हम बस के लिए खड़े थे and it began to rain. Let's understand these sentences. See here. Now here this is the school where Mukul and Rakesh studies. So both of them they are going to school. दोनों स्कूल जा रहे हैं. मुकुल एंड राकेश आर, मुकुल और राकेश स्टूडेंट्स है तो सिमिलर थिंग हुआ. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल. देन द नेक्स्ट वन इज देयर फ्रूट्स. तो व्हाट वाज चॉइस के वी विल गो टू द मार्केट एंड बाय फ्रूट्स. या तो हम दोनों चीज़ खरीदेंगे, फ्रूट्स भी खरीदेंगे एंड वेजिटेबल्स. बोथ द थिंग्स वी विल बाय फ्रॉम वेयर? From the market. So from both these places, market जाके हमें क्या खरीदना है? We need to buy fruits and vegetable from the market. Now, yes, some people are there. We were waiting for the bus. यहाँ हम बस के लिए खड़े थे. But what happened suddenly? It began to rain. बारिश शुरू हो गई. So
दिस हियर कि बस का वेट कर रहे थे, तब अचानक बारिश हो गई and it started raining. So here we have joined the similar thing. Mukul and Rakesh, fruits and vegetables, and bus and rain. It is joined by similar meaning or words. Now where we are using but, let's see. But is used to join two words or sentences. तो एंड की तरह ही बट का भी यूज़ टू वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने लिए होता है. डिफरेंस क्या है? दैट आर डिफरेंट. वो थिंग्स सेम नहीं होती, अलग होती है. और थिंग्स दैट डू नॉट गेट टुगेदर, या वो दोनों चीज़ आपस में एक साथ एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है. तो बट का यूज़ कहाँ पे होगा? But is used to join two words or sentences that are different or the things that do not go together. वो दोनों चीज़ टोटली एक दूसरे से अलग होती है, तब हम but का यूज़ करते हैं. Let's see. We were tired but excited about the safari. कि हम थक तो गए थे, मगर सफारी इतनी एक्साइटेड चीज़ होती है कि हम जाना चाहते थे वहाँ. द रूम इज़ बिग बट नॉट वेरी एरी. कि रूम तो बहुत अच्छा है, मगर उसमें हवा आ जा सकती नहीं है. नाउ और का यूज़ कब होगा? और इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट चूजिंग बिटवीन द टू ऑप्शंस. दो ऑप्शन आपको दिए हैं, या तो आपको आइसक्रीम खानी है या पिज़्ज़ा खानी. लाइक दैट चॉइस इज़ गिवन. फ्रॉम दैट यू हैव टू चूज वन. लेट्स सी हाउ. डू यू लाइक मुंबई और दिल्ली? कि दो प्लेसेस है, मुंबई और दिल्ली, उसमें से आपको क्या पसंद है? वुड यू लाइक सम टी और फ्रूट जूस? तो आपको क्या प्रिफर करेंगे, टी और फ्रूट जूस? चॉइस इज गिवन. डू यू वॉन्ट टू वॉच अ फिल्म और डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट? या आप पिक्चर देखना जाना पसंद करोगे या मार्केट जाना पसंद करोगे? चॉइस इज गिवन. उसे अच्छे से समझ लेते हैं. सी हियर. Here safari is so nice place where so many different kind of animals are there in plenty. तो हम थक तो गए थे, मगर तो भी सफारी का नाम सुनते ही एक अलग तरह का उत्साह आ गया. एंड वी वांटेड टू हियर अबाउट द सफारी. सो वी वेर टायर्ड बट एक्साइटेड अबाउट द सफारी. देन द रूम इज़ बिग. इतना बड़ा रूम है, बट विंडोज़ आर नॉट देयर. विंडोज़ इज़ नॉट देयर, सो it is not airy. Room, no doubt it is very big, but it is not airy. Now about the choice or. See here, or where we will use? Yes, or where we will use when choice is given. तो या तो हम मार्केट जाके फिल्म देख सकते हैं, और वी कैन डू मार्केटिंग ओवर हियर. टू चॉइसेस गिवन. सो और do you like Mumbai or Delhi? So choice is ours. Now we will understand because. Because का use कब होता है? Let's see. Because is used to offer an explanation or give a reason. कोई एक चीज़ का explanation हमें देना है या उसका reason बताना है, तब हम because का use करेंगे. I was late to school. What is the reason? Because of the traffic jam. ट्रैफिक जाम लगी थी, इसलिए I was late for school. We went bed early because we were tired. हम जल्दी सो गए. What is the reason? Because we were tired. अब so का यूज़ कब होगा? So is used to show cause and result. कारण बताना हो और क्यों हुआ, that time so is used. It was raining, so I couldn't go to the market. बारिश हो से इसलिए मैं नहीं जा पाया. Mahesh was out of the town, so he could not attend the annual function. Mahesh was out of the town, so
ही कुड नॉट अटेंड द एनुअल फंक्शन, शहर से बाहर था तो ऑब्वियस वो एनुअल फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सी हियर, नाउ इट वॉज रेनिंग सो वी कुडंट गो टू मार्केट। बारिश में तो हम जा ही नहीं सकते, ऑब्वियस यहाँ पे कारण है। एज अ रिजल्ट वी वर नॉट एबल टू गो टू द मार्केट हम नहीं जा पाए। एंड ही वॉज आउट ऑफ द टाउन सो ही कुड नॉट अटेंड द एनुअल फंक्शन। नाउ लेट्स सी दूसरा कंजक्शन येट, वो हम कहाँ यूज़ करेंगे। येट इज़ यूज टू शो टू अपोजिट थिंग, दो चीज़ें दो दूसरे से बिल्कुल अलग है, विपरीत है, वहाँ पे येट का यूज़ होता है। सी हैड अ फीवर येट सी अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, बुखार होने के बावजूद भी उसने एग्ज़ाम दी, सो येट इज़ देयर। हिज ट्रेन वॉज लेट येट ही रीच्ड होम ऑन टाइम, उसकी ट्रेन लेट थी, अपोजिट थिंग, तो भी वो घर टाइम पे पहुंच गई। तो दैट टाइम व्हेन टू अपोजिट थिंग इज देयर, तब येट का यूज़ होता है। इफ़ का यूज़ कब होगा। इफ़ इज़ यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम इफ़ का यूज़ करेंगे। वेयर वन सेंटेंस इज़ कंडीशन, एक सेंटेंस हो वो कंडीशन हो फॉर द अदर, कि ये चीज़ होगी तो ही ये पॉसिबल है, ऐसा शर्त रखा जाए, दैट टाइम इफ़ इज़ यूज्ड। कैसे, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी हैव टू कैंसल द ट्रिप, कि यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि अगर कल बारिश होगी तो हमारी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रीच्ड स्कूल वेट फॉर मी इन द लाइब्रेरी, कि अगर आप स्कूल पहुँच गए हो तो मेरे लिए लाइब्रेरी में वेट करना। देन व्हेन का यूज़ कब होगा। व्हेन इज़ यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस व्हेन टू एक्शंस और स्टेट्स आर रिलेटेड इन टाइम, दोनों एक समय पे ही हो रहा है और एक दूसरे से टाइम का मैच हो रहा है, दैट टाइम व्हेन कंजक्शन विल बी यूज्ड। आई विल लीव व्हेन ही कंप्लीट्स हिज वर्क, जब उसका वर्क हो जाएगा तब मैं यहाँ से निकलूँगा, टाइम है इसमें कि जब उसका वर्क हो जाएगा तब। वी वेर ऑलरेडी लेट व्हेन वी टुक द रिक्शा, कि हम पहले से लेट हो चुके थे इसलिए हमने रिक्शा ली, कि दैट टाइम वी टुक द रिक्शा, उस समय में हम लेट हो चुके थे इसलिए उस समय हमने रिक्शा पकड़ ली। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस वंस अगेन। नाउ सी what was the sentence. This case the train was late, ट्रेन लेट थी, yet he reached home on time, ट्रेन लेट होने के बावजूद भी he reached home on time। तो here opposite thing is there, that time yet conjunction यूज़ होता है। देन ये अपने घर पे उस टाइम पे पहुंच गया, ट्रेन लेट थी तो भी। नाउ व्हेन, इफ कंडीशन कब यूज होता है, कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी रीच द स्कूल, अगर आप स्कूल पहुंच गए हो तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट इन द लाइब्रेरी। कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी रीच्ड स्कूल, अगर आप स्कूल पहुंच गए हो तो वेट फॉर मी इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपको वेट करना है। सो हियर ऑल दिस कंजक्शंस वर्ड एंड, बट, और, बिकॉज, सो, येट, इफ, व्हेन, वी हैव टू यूज टू ज्वाइन टू डिफरेंट वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो जब भी हमको दो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं उसे कहा जाता है कंजक्शन। सो in the next video we will do the textual exercise. Happy learning students.